Hello students, welcome back to my channel. Today I will complete the rest part of calorimetry, that is calorimetry part 2. I already completed calorimetry part 1, only theory portion. So today calorimetry part 2, that is also theory portion. If possible, I will carry on the numericals. So calorimetry part 2. Okay, here we can say. So first we can say this is the very important chapter because in calorimetry part 2 we will deal with the latent heat, two important process of phase change, that is and melting and evaporation. Okay, so first I will draw a graph, then you will have better idea. First, suppose I already mentioned here ice. Ice at 0 degree Celsius melt to water at 0 degree Celsius temperature. This is by absorbing heat. Also, water at reversibly we can say water at 0 degree Celsius also changes to ice at constant temperature by the rejection of heat. So this process is known as melting. This process is known as freezing. For pure substance, both melting and freezing are same. So we can say, so this is the change of state or change of phase. पदार्थ कोई एक अवस्था से दूसरे अवस्था को जब चेंज होता उसे चेंज ऑफ स्टेट कहा जाता है. तो we know matter has three state, solid, liquid and gas. जब सॉलिड से वो लिक्विड को चेंज होगा उससे मेल्टिंग कहा जाता है. लिक्विड से गैस को चेंज होता उससे वेपोराइजेशन कहा जाता है. ओके, तो अब हम फर्स्ट एक ग्राफ बनाते ताकि तुम लोग का जानकारी अच्छी तरह हो पाएगा. सो this is the temperature degree Celsius. This is time second. Okay, suppose I can say, what do you mean by melting and melting point? When a solid changes the process at which a solid changes to liquid at constant temperature is called melting, or the constant temperature at which a solid changes to liquid is called melting point. Similarly, freezing and freezing point is also same. Locally, melting point is same as freezing point for pure substance. अगर इसमें impurity ना हो. ओके, सो हम कहेंगे फर्स्ट हम लोग का सिलेबस में ओनली आइस के लिए आइस वाटर, आइस सॉलिड में, देन वाटर होगा वाटर वेपर. वाटर वेपर का जो वेपोराइजेशन का पोर्शन हम लोग का बहुत लिस्ट आता है. खाली आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर, वहां तक हम पढ़ेंगे. We should be very fundamental in this concept in this portion. Suppose ice at minus 10 degrees Celsius. Okay, suppose 15 gram of ice is at minus 10 degrees Celsius. इससे हम हीट किए. ओके, हीट करने के बाद तो ये 0 डिग्री सेल्सियस
100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब होता है आइस को अगर हम वाटर बनाएंगे, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अलग अलग प्रेशर में मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। ये होता है, मैंने जैसे कहा, ये होता है मेल्टिंग, ये होता है फ्रीजिंग। ओके। जब आइस पहले -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में था, इसको टाइम धीरे धीरे बढ़ा, ग्रेजुअली हम टाइम बढ़ाते, इससे आइस आके पहुंच गया 0 डिग्री टेम्परेचर में। तब इससे हम कहेंगे हीट ऑब्जर्व्ड बाय आइस टू चेंज फ्रॉम -10 टू 0 डिग्री सेल्सियस इज mc डेल्टा टी। ये जगह में मैंने कहा था P और Q, सपोज ये P, ये Q, ये R, ये S। तो P Q में हीट ऑब्जर्व इज इन आइस स्टेट, दिस इज mc डेल्टा टी। ये C क्या होता है, M हो गया 15, C हो गया आइस के लिए 2.1 जूल पर ग्राम केल्विन। डेल्टा टी कितना है, 0 -10 इक्वल टू +10। ओके, पूरा अच्छी तरह ध्यान से ये चीज देखना। जब ये आइस स्टेट, ये कौन सी स्टेट में, आइस में, आइस पहले -10 में था, तो -10 से मैंने इसको कॉन्स्टेंटली हीट इसका ऊपर ऐड किया, so ice will change to -10 to 0 degree Celsius. So during this process in PQ, ice will change to ice at -10 degree Celsius to change to 0 degree Celsius by absorbing heat, that is mc delta t। m मैंने 15 ग्राम आइस लिया था, तो अब इसके बाद ये क्या हुआ, जब Q पॉइंट में वो पहुंचा, वो हीट ऑब्जर्व किया mc डेल्टा टी। C का वैल्यू होता है आइस का 2.1 जूल पर ग्राम केल्विन। जैसे वाटर का C बा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन, जैसे आइस का 2.1 जूल पर ग्राम केल्विन। ये जो 0 -10 तब हो गया +10। इसके बाद आए यहाँ आइस, 15 ग्राम आइस यहाँ पहुंच गया, ये जगह में 15 ग्राम आइस। अभी 15 ग्राम आइस को हम वाटर बनाएंगे। ये जो होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये जगह में आइस अभी वाटर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आइस वाटर होता 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, जिससे कहा जाता मेल्टिंग, एंड 0 डिग्री टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। सो मेल्टिंग पॉइंट में वो 15 डिग्री आइस पूरा 15 डिग्री वाटर को चेंज होगा। ये 15 ग्राम आइस विल चेंज टू 15 ग्राम वाटर। कैसे चेंज होगा, जो 15 ग्राम आइस हमारे पास था, वो 15 ग्राम वाटर को चेंज होगा, वो सॉलिड से लिक्विड को चेंज होगा। लेकिन ये खूबी होता है, पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था को जो चेंज होता, वो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके ही चेंज होता। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात, वो जो मेल्ट होगा कांस्टेंट टेम्परेचर भले मेंटेन करेगा, वो हीट ऑब्जर्व, द कांस्टेंट टेम्परेचर will be maintained but heat will be absorbed। ये कैसे हाल है, हीट ऑब्जर्व होने पर भी इसका टेम्परेचर में कुछ चेंज नहीं होता। इसका मतलब हीट ऑब्जर्व होता, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जो पदार्थ चेंज होता, भले हीट ऑब्जर्व करता, इसका स्टेट का कुछ, इसका टेम्परेचर का कुछ राइज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये जो हीट ऑब्जर्व करता, उससे सॉलिड जब लिक्विड को चेंज होता बाय ऑब्जर्विंग हीट, वो टेम्परेचर चेंज नहीं होने के कारण उससे कहा जाता लैटेंट हीट, मतलब गुप्त हीट।
लाटेंट मतलब छुपा हुआ हीट, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। पदार्थ सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस को जब चेंज होता वो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके चेंज होता। टेम्परेचर जो हीट बढ़ता नहीं या घटता नहीं, इसीलिए उससे कहा जाता लाटेंट हीट। ओके, सो लाटेंट हीट 15 ग्राम हम आइस लिए थे, 15 ग्राम वाटर हुआ। बाय गेनिंग लाटेंट हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इट विल कंटिन्यूअसली चेंज टू वाटर। तो यहाँ 15 ग्राम आइस था, 10 ग्राम आइस 5 ग्राम वाटर, 5 ग्राम आइस 10 ग्राम वाटर, ये आर पॉइंट में पहुंच जाने पर पूरा वाटर बन गया। ओके, सिमिलरली द रिवर्स इज पॉसिबल। सपोज हम 15 ग्राम वाटर लिए थे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वाटर, कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, the water will also gradually changes to ice at maintaining 0 degree Celsius by releasing heat। तब वाटर जो लिक्विड जब सॉलिड को चेंज होता वो हीट रिजेक्ट करता है, रिलीज करता है, और सॉलिड जब लिक्विड को चेंज होता वो हीट ऑब्जर्व करता। वो दो हीट को कहा जाता लैटेंट हीट। हीट ऑब्जर्व जो करता उससे भी लैटेंट हीट कहा जाता। हीट जब रिजेक्ट करता वाटर आइस हो जाता उससे भी लैटेंट हीट कहा जाता, क्योंकि ये प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ओके, लोकली लैटेंट हीट ऑफ जो मेल्टिंग और फ्रीजिंग दोनों सेम, उससे कहा जाता फ्यूजन। क्या कहा जाता? फ्यूजन। एक बहुत बड़ा टर्म, माने इंपोर्टेंट टर्म होता है फ्यूजन। बोथ मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेस इज टर्म्ड एज फ्यूजन। ओके, सो हम कहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय लैटेंट हीट? द कांस्टेंट टेम्परेचर, the constant temperature which is observed by a solid to change into liquid is called latent heat. The constant temperature which is observed by the liquid to change into solid is also called latent heat. Okay, so ये जो होता है that constant temperature is called latent heat और latent heat of fusion, because फ्यूजन जो होता है, फ्यूजन किसको कहा जाता है? मेल्टिंग और फ्रीजिंग दोनों प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है। अभी हम कहेंगे सो ये लैटेंट हीट को कहा जाए, अगर हम कहेंगे क्यू, क्यू हो गया लैटेंट हीट, मतलब इसी हीट को वो ऑब्जर्व करेगा या रिजेक्ट करेगा कांस्टेंट टेम्परेचर में, ताकि पदार्थ का एक स्टेट से दूसरे स्टेट को चेंज हो जाता। ओके, देन हम कहेंगे स्पेसिफिक लैटेंट हीट और स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। क्यों हम स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बोलते हैं? हम लोग का सिलेबस में भले दूसरे पदार्थ का भी न्यूमेरिकल आता है, मेनली आवर सिलेबस इज डील्ड विथ माने आइस वाटर। ओके, सो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हम बोलेंगे, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सब्सटेंस भी में मैंने बता दूंगा, ताकि तुम इनका बीच में डिस्टिंक्शन भी जान पाएंगे। ओके, फर्स्ट मैं बताता हूं, ये हो गया PQ। PQ हो गया, क्या होगा? MC डेल्टा T, इतना जूल होता है। ओके, देन ये हो गया QR। QR में जो हीट आएगा, ये QR में ये हो, इसको हम कहेंगे, ये हीट को हम बोलते हैं मेल। एल क्या होता है? where L equal to specific latent heat of fusion of ice, or simply you can say specific latent heat of ice। इसका कहने का मतलब, हम अगर इसको लिखेंगे Q इक्वल टू ml, इसका मतलब L इक्वल टू Q बाई M, जूल पर kg और जूल पर ग्राम। So latent heat of fusion of ice is defined as the amount of heat energy required to change 1 gram of ice from
solid from ice to water at its melting point. Or latent heat of fusion of ice is defined as the amount of heat energy required to change 1 gram of water to ice, maintaining constant temperature and maintaining constant temperature to change 1 gram of water to ice at its melting point. वो भी melting point में 1 ग्राम वाटर अगर आइस होगा by rejecting heat, then that is amount of heat energy rejected or released when 1 gram of water at 0 degree Celsius temperature changes to ice at 0 degree Celsius temperature, maintaining constant temperature. That is the latent heat of fusion of ice. और इस ये भी रिवर्स हो सकता, मेल्टिंग होने पर हम Q इक्वल टू एम एल, वो प्रोसेस हीट ऑब्जर्व करता, फ्यूजिंग होने पर वही भी Q इक्वल टू एम एल, वह हीट रिजेक्ट होता. ओके, तो अब इसका ऐसा यूनिट होता है जूल पर केजी, इसका ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट होता है जूल पर ग्राम. हम भी बोल सकते, ये तो मैंने आइस का लैटेंट हीट समझाया. सो स्पेसिफिक लैटेंट हीट मतलब पर यूनिट मास, मतलब उससे कहा जाता स्पेसिफिक. याद दिलाओ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देन हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब पर यूनिट मास. ओके, सो वी कैन से लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस मैंने बताया. अगर डिफाइन मैंने करूंगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सब्सटेंस. लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सब्सटेंस मैं कहूंगा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू change the substance from its solid state to liquid state during melting is called latent heat of a substance. Okay, अगर मैंने कहूंगा स्पेसिफिक latent heat of fusion of a substance, तो मैं कहूंगा स्पेसिफिक latent heat of fusion of a substance is defined as the amount of heat energy required to change unit mass of a substance from its solid state to liquid state during melting is called specific latent heat of fusion of a substance. It is denoted by L. इसका ऐसा यूनिट होता है जूल पर केजी, या सीजीएस यूनिट होता है जूल पर ग्राम. लकीली स्पेसिफिक latent heat of fusion of ice, L इसको लेते हैं. L होता है 336 जूल पर ग्राम और 336 000 जूल पर केजी. ओके, सो हम सेकंड में लिख दिए. सो वही 15 ग्राम यहाँ था. जब ये 15 ग्राम सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट को जाएगा, इट विल ऑब्जर्व हीट Q इक्वल टू ml और QR इक्वल टू QR में जो हीट ऑब्जर्व होगा वो Q इक्वल टू ml. ओके, देन where L equal to specific latent heat of ice. जो L का वैल्यू हम जानते हैं, ये 336, ये 336 होने के कारण हम यहाँ लिख देते 15 इंटू 336 और जितना होगा इतना जूल. ओके, तो फर्स्ट हम -10 डिग्री सेल्सियस में आइस था, इसको अगर हम हीट किए, ये हीट ऑब्जर्व किया, ये जाके Q पॉइंट में पहुंचा, तो वहां हीट कितना ऑब्जर्व किया, Q इक्वल टू MC डेल्टा टी. आइस के लिए C 2.1, तो अब डेल्टा टी होता है बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, 0 माइनस और -10 इक्वल टू +10. तो अब ये हो गया PQ में इतना हीट ऑब्जर्व किया. QR में कितना हीट ऑब्जर्व करेगा, लैटेंट हीट. हम बोले ये प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसे मेल्टिंग कहा जाता. टेम्परेचर कांस्टेंट रहता मेल्टिंग पॉइंट में वो, लेकिन पदार्थ हीट ऑब्जर्व करके सॉलिड से लिक्विड को चेंज होता, या हीट रिजेक्ट करके लिक्विड से
सॉलिड को चेंज होता, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करता, उससे लैटेंट हीट बोलते हैं। वो जो हीट ऑब्जर्व करता या रिजेक्ट करता उससे लैटेंट हीट कहा जाता। लेकिन स्पेसिफिक लैटेंट हीट उससे मेल्टिंग और फ्रीजिंग दोनों को भी फ्यूजन कहा जाता। सो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उससे कहा जाता। हम आइस लिए 15 ग्राम आइस लिए, तब आइस के लिए क्यूआर प्रोसेस में जब हम ऐसे जाएंगे, मैंने आइस से वाटर को चेंज करेंगे, तब हीट जो ऑब्जर्व करेगा लैटेंट हीट, तब होगा क्यूआर में कितना हीट ऑब्जर्व करेगा, equal to ml, where L equal to specific latent heat of fusion of ice और latent heat of specific latent heat of ice. डोंट कंफ्यूज, कभी कभी वो कहाँ पे लिखा जाता स्पेसिफिक latent heat of fusion of ice, कहाँ पे भी लिखा जाता स्पेसिफिक latent heat of ice, तब दोनों सेम होते हैं। ओके, देन यहाँ पे आर में पहुंच गया। आर में जब पहुंचा तो पदार्थ और आइस अभी यहाँ पूरा पानी हो गया, तो पानी होने के कारण तो आर एस में कितना हीट ऑब्जर्व करेगा, वो ग्रेजुअली हीट हुआ, टाइम बढ़ने लगा, वो हीट ज्यादा ऑब्जर्व किया, इससे इससे वो 15 ग्राम वाटर, अभी 15 ग्राम वाटर को चेंज होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो 15 ग्राम वाटर will change from 0 degree Celsius temperature to 100 degrees temperature. So heat absorbed during this process is Q equal to mc delta T. mc delta T, डेल्टा टी एम मतलब हम 15 ग्राम लिए, 50 इंटू सी 4.2, वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी होता है 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन या 4200 जूल पर केजी केल्विन। हम यहाँ ग्राम पे लिए, सो एम सी डेल्टा टी होता है 100 माइनस 0, तो ये जितना होगा इतना जूल। ओके, बड़ी खुशी का बात है, मैं पहले -10 में आइस को लिया था, तुम कहेंगे सर आप 15 ग्राम आइस लिए, उसी 15 ग्राम को आप लेके यहाँ तो क्यों पहुंचे? हम कहेंगे वही होता है, जितना हम पदार्थ लिए इतना पदार्थ तो पूरा चेंज नहीं, जब तक नहीं होता तब तक वो प्रोसेस कंटिन्यू होता। इसका मतलब क्यू पॉइंट में 15 ग्राम आइस था, वो 15 ग्राम आइस टोटल 15 ग्राम वाटर जब तक नहीं हुआ वो बाहर से लैटेंट हीट को ऑब्जर्व करते रहेगा। ओके, कभी कभी एकादे न्यूमेरिकल में वो थोड़ा अलग दिया हुआ, मतलब बहुत कम न्यूमेरिकल में, हकीकत में पूरा मास को चेंज होना चाहिए। एकादे न्यूमेरिकल में कहा फाइंड द मास दैट कन्वर्ट टू वाटर फ्रॉम आइस, तो उसी केस में हम थोड़ा नियम से अलग रहेंगे, नहीं तो प्रत्येक न्यूमेरिकल में क्या होता है मास कांस्टेंट रहता। तब ये -10 से Q तक पहुंचा, P से Q इक्वल टू mc डेल्टा टी, ये आइस था, तो अब जब 0 पहुंच गया, ये तो पदार्थ का धर्म होता है, जब मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाएगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर में लैटेंट हीट गेन करके या लूज करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट को चेंज होगा। तब ये लैटेंट हीट गेन किया क्यूआर में, वो हो गया ml, वेयर L इक्वल टू स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, इसका वैल्यू होता है 336 जूल पर ग्राम केल्विन। ओके, देन जब R में पहुंच गया तब वहां पे पूरा वाटर है, अभी आइस नहीं है, ये रास्ते भर थोड़ा सा आइस थोड़ा सा वाटर, थोड़ा सा आइस थोड़ा सा वाटर, थोड़ा सा आइस थोड़ा सा वाटर, जब आर पहुंच गया पूरा वाटर रहा। तब आर से एस तक अभी जो प्रोसेस फॉलो करेगा वो पूरा वाटर है, तब इसीलिए हम कहेंगे Q इक्वल टू mc डेल्टा टी। सी होता है वाटर के लिए 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन, तो इसको ये वैल्यू हम डाल दिए, तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देन अभी जब आया ये S
और टी। ओके, एस और टी ये वाटर लाइन होता है। ओके, ये तुम्हारा मेल्टिंग। ओके, अभी एस और टी इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। एस और टी ये होता है वेपोराइजेशन। ये भी पूरा यहां तक पहुंचेगा वो 15 ग्राम। तो अब इसका कहने का मतलब एस टी कर्व देखो, वो कांस्टेंट टेम्परेचर भी मेंटेन किया, उससे कहा जाता लाटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। तो अब ये होगा लाटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक्चुअली क्या होता है, 15 ग्राम पानी यहाँ था, ये भी जब वेपोराइजेशन होगा 15 ग्राम पानी 15 ग्राम स्टीम को या 15 ग्राम वेपर को चेंज होगा, दैट इज मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि यहाँ पे पदार्थ लिक्विड से गैस को चेंज होता है, पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था को जो चेंज होता वो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके चेंज होता। ये कब यहाँ पे इसको कहा गया था मेल्टिंग पॉइंट, इसको कहा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आइस क्या होता है, जब वाटर को चेंज होता वो 0 डिग्री सेल्सियस में आइस वाटर को चेंज होता, उससे कहा जाता मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आइस वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर से गैस को चेंज होता या वेपर को चेंज होता, उससे कहा जाता बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सिमिलरली यहाँ 15 ग्राम वाटर था, इट विल गेन लैटेंट हीट, बाहर से लैटेंट हीट गेन करेगा, वो चेंज होगा वेपर। तब इस जगह में खाली पानी था, टी में जब पहुंच जाएगा वो पूरा गैस हो जाएगा या ये हो जाएगा क्या होता है बाप वेपर हो जाएगा। ऐसे भी रिवर्स भी हो सकता है, इससे कहा जाता है कंडेंसेशन, ये तुम जानते हो। तो अब हम कहेंगे जब वाटर से वेपर होगा वो लैटेंट हीट गेन करेगा, जब वेपर से वाटर होगा वो लैटेंट हीट लूज करेगा। ओके, सो उससे कहा जाता लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये रास्ते पर एस और टी का बीच में ये फास्ट था 15 ग्राम से, थोड़ा सा वाटर थोड़ा सा पानी, और थोड़ा सा वाटर थोड़ा सा वेपर, थोड़ा सा वेपर थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा वेपर थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा वेपर थोड़ा सा पानी, ये टी जगह में पूरा वेपर हो गया। ओके, यहाँ पे जैसे हुआ था यहाँ पूरा टी पॉइंट में टोटली वेपर हो गया। सो यहाँ जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसको कहा जाता। तो ये भी एल का वैल्यू होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का वैल्यू होता है 2268 जूल पर ग्राम केल्विन, 2268 जूल पर ग्राम केल्विन। ओके, इसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए ये लैटेंट हीट गेन करके वाटर से वेपर होगा, व लैटेंट हीट लूज करके वेपर से वाटर होगा। ओके, आफ्टर टी पॉइंट सो टोटल वेपर फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद अगर इसको फर्दर हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अब ये इट विल फॉलो द गैस लॉज। सो आफ्टर वेपोराइजेशन the vapor is further heated, then it is called superheated vapors. Superheated vapors for all purpose strictly obeys gas laws. Okay, so we should not bother about vapor after the point T, because that is अलग से totally different section, that follows the gas laws. So up to this point हम आए। Actually our syllabus pattern is like this, from P to S we should bother about the curve from P to S. ओके, पूरा समझ में आ गया। मेरा कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट, तब इसको अगर तुम ध्यान नहीं देंगे, इसके कर्व के बारे में जानकारी तुम्हें नहीं आएगा, तुम लोग को बहुत दिक्कत हो सकता है। ओके,
सो इसके बाद मैंने कहूंगा कभी कभी ये होता है, अगर ऐसे मैंने एक छोटा सा कर्व बना देता हूं, कोई कहा एटमॉस्फेरिक आइस था फास्ट, कभी कभी ग्राफ में ऐसे दिया जाता है इसको, ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, ये टाइम सेकेंड, कभी कभी हम ऐसे लेते हैं जीरो, तो अब ये गलत हो गया, देखो ये जीरो में 15 ग्राम आइस लिए, 0 डिग्री टेम्परेचर में पूरा यहाँ 15 ग्राम वाटर हुआ, मैंने यहाँ जीरो यहाँ लिया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आइस मैंने ये ऑर्डिनेट का ऊपर लिया तो 15 ग्राम वाटर हुआ, इसके बाद ये वाटर लाइन Q इक्वल टू MC डेल्टा T, तो अब यहाँ 100 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस में ये क्या होता है, यहाँ वेपोराइजेशन होना स्टार्ट होगा, इसके बाद वो गैस हो गया। ऐसे भी कभी कभी कर्व आता है, अगर एक कर्व का ऊपर जानकारी हो जाएगा तो हम लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसके बाद थोड़ा ध्यान देना, देखो हम लोग एक चीज भी पढ़ेंगे, ये शायद 2019 में कुछ आया था क्वेश्चन ऐसे, सो ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस टाइम सेकेंड, हाँ ये वो क्वेश्चन ऐसा आया था, लिक्विड नेफ्थलीन हैज 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस में वो था, लेकिन इसका क्या था, इसका मेल्टिंग पॉइंट 8 डिग्री सेल्सियस, तो अब इसका ये देखो लिक्विड नेफ्थलीन बोलता मेल्टिंग पॉइंट 80, देन रूम टेम्परेचर 20, खाली ये ग्राफ को काट देना, ये आ जाएगा तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। इसको इसका कहना मतलब क्या होता है, तुम कहेंगे सर आप ग्राफ तो ऐसे बनाए थे, यूं बनाए थे, ऐसे बनाए थे, फिर आप उल्टा कैसे लाए, अरे बाबा इसको हीट किए, ये टेम्परेचर ये टाइम, मैंने ऐसे हीट किया, ये हीटिंग कर, ये कूलिंग कर, कूलिंग मतलब पहले कोई चीज 100 में था, 100 में जब था टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, टाइम बढ़ने लगा, देखो टाइम बढ़ने लगा, इसका टेम्परेचर 80 हुआ, वो 80 होने के बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गया, तब ये शायद यहाँ पे था, ये 100 में था, टाइम कभी उल्टा में नहीं आता, यूं नहीं आता टाइम, बल्कि ऐसे जाता है, तब यहाँ 80 जब पहुंच गया इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये धीरे धीरे क्या हुआ, सॉलिड होने लगा, यहाँ लिक्विड था ना, यहाँ सॉलिड आके होके पहुंच गया, सॉलिड होने के बाद इसको फर्दर ठंडा किए, ठंडा करने के बाद ये रूम टेम्परेचर 20 डिग्री तक ठंडा किए, ठंडा करने के बाद ये यहाँ के पहुंच गया, ये एग्जाम में एक बार आया था 19 में, शायद ये आया था 3 मार्क या 4 मार्क का क्वेश्चन, सो यू शुड फॉलो दिस कर्व, दिस इज द हीटिंग कर्व, दिस इज द कूलिंग कर्व, ओके। देन some new things, so impact of melting point and boiling point by increasing pressure, okay, so melting point and boiling point increases with increasing pressure,
इफ प्रेशर इज इंक्रीज, मैंने तुम लोग को कहा था वी आर स्ट्रिक्टली डीलिंग विथ आइस ओनली। ज्यादातर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आइस का ऊपर ही आता है, आइस वाटर। कभी कभी अलग मटेरियल भी आ जाता है। ओके, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आइस वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, और वाटर वाटर वेपर होता है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। लेकिन अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ता है। तुम लोग का दिमाग में आएगा सर प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट देखो, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने के बाद तो क्या होता है, इनका पार्टिकल या मॉलिक्यूल ये ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। तब क्लोज होने पर तब इनका अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल विल इंक्रीज। तो इनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा माने इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर, तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा देने पर वो मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट क्लोज हो गए, तब ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। ओके, देन तुम लोग ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, जब हम माउंट एवरेस्ट का ऊपर जाते हैं, वहां पर बिना प्रेशर कुकर में हम खाना नहीं बना पाते। क्यों? एट हायर एल्टीट्यूड द प्रेशर बिकम लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो हम जो पानी गर्म करेंगे, वहां खाना सब्जी बनाएंगे, तो तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण पानी तो पहले वेपर हो जाएगा, लेकिन खाना तब तक मेल्ट, खाना का ऊपर कुछ प्रभाव नहीं डालता। इसीलिए फॉर कुकिंग, फॉर द आइटम्स इनसाइड द कुकर टू बी मेल्टेड, इसका मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाना चाहिए। इसीलिए जानबूझकर हम प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते, ताकि इसका अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो और हमारा मतलब देन कुकिंग बिकम इजी एंड फूड विल मेल्ट इजीली। ओके, इसके बाद देखो मेल्टिंग पॉइंट देन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन pressure. Melting point and boiling point increases with increase in pressure. Then presence of impurities. अगर कोई पदार्थ में इम्प्यूरिटी रहा, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट decrease the presence of impurities decreases both melting point and boiling point. Why? As the crystal lattice, वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो प्रकार का पदार्थ होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, एक अमोर्फस सब्सटेंस। इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस द माने पार्ट ओरिएंटेशन ऑफ द पार्टिकल इन ए रेगुलर 3 डायमेंशन पैटर्न, वहां सारे मॉलिक्यूल या आयन, ये सबका आयनिक डिस्टेंस या मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहता है, एक जगह में ज्यादा एक में कम ऐसे नहीं रहता, वो रेगुलर 3 डायमेंशन पैटर्न में रहता है। लेकिन अगर इससे हम इम्प्योरिटी डाल दें कोई पदार्थ में, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन बिगड़ जाता है। ओके, एंड इट वीकन द मॉलिक्यूलर फोर्स, वो पार्टिकल के अंदर जो फोर्स होता है उन्हें वीकन कर देता है। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ presence of impurity. ये very important. Then but it is different for ice. Then melting point of ice decreases with increase in pressure. मैंने कहा जब प्रेशर हम बढ़ाते हैं, तो melting point and boiling point increases with increase in pressure. But ice के केस में रिवर्स होता है, melting point of ice decreases with increase in pressure. क्योंकि जब हम आइस में प्रेशर बढ़ाते हैं, तब क्या होता है, बिकॉज एट इंक्रीज प्रेशर
माने when ice will melt, water will form. Water has less volume than ice. Water has less volume than ice. याद दिलाओ, आइस का डेंसिटी कम होता है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है. बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. तब वाटर का जो वॉल्यूम कम होता है, तब वॉल्यूम कम हो जाने पर ज्यादा प्रेशर लगता है. प्रेशर बढ़ाने पर हम वाटर बन जाता, मतलब ये होता है, मतलब वॉल्यूम कम हो जाता. वाटर हैज लेस वॉल्यूम देन आइस, so melting point of ice decreases. Okay, then next thing, one important thing, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है. So what is the change in average kinetic energy when a substance changes from solid to liquid or a liquid to gas or during melting and during vaporization? जब एक पदार्थ सॉलिड से लिक्विड को जाता है या लिक्विड से गैस को जाता, देयर इज नो चेंज इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी काइनेटिक एनर्जी in speed or velocity is a function of temperature. As the temperature remain constant, there is no change in average kinetic energy. Okay, then during melting or vaporization, whether there is change in average potential energy, हम कहेंगे yes, because when a substance changes from solid to liquid, then the position of the particle changes, वो बढ़ जाता है, तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है. जब लिक्विड से सॉलिड को जाते हैं तब ये माने पार्टिकल क्लोज हो जाते हैं, पोजीशन पार्टिकल का चेंज हो जाता है, तब पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाता, तब एवरेज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस. ओके, सो ड्यूरिंग फेज चेंज माने if there is change in average potential energy and kinetic energy, you should write down like this. Then some practical significance of high latent heat of fusion of ice. ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा इसके ऊपर जानकारी होना चाहिए. फर्स्ट होता है स्नो में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ. व्हाई स्नो एंड माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट एट ऑल एट वंस. Why snow of mountains does not melt all at once? हम लिखेंगे specific latent heat of fusion of ice is high, that is 336 joule per gram. Again I repeat, specific latent heat of fusion of ice is high, that is 336 joule per gram. It means 1 gram of ice has to absorb 336 joule of heat energy from the atmosphere during melting. तो 1 ग्राम आइस को मेल्ट होने के लिए एटमॉस्फेयर से 336 जूल ऑफ हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करना पड़ता है. दिस इज ए बिग अमाउंट. दैट्स व्हाई मेल्टिंग ऑफ आइस and melting snow of mountain does not melt all at once. Second application, in cold countries water bodies does not freeze all at once. Why? Similarly, same way हम लिखेंगे in cold countries water bodies does not freeze all at once. This is due to high specific latent heat of fusion of ice. इसका मतलब वाटर से वो आइस होगा. सो हम लिखेंगे स्पेसिफिक latent heat of fusion of ice is high, that is 336 joule per gram. It means 1 gram of water will have to release 336 joule of heat energy to change 1 gram of ice at 0 degree Celsius temperature. That's why in cold countries water bodies does not freeze all at once. अच्छा, then it is generally more cold after hailstorm than before hailstorm. Or question also comes like this:
why the atmosphere become pleasant after hailstorm? हाँ, इसका आंसर like this. Specific latent of fusion of ice is high, that is 336 joules per gram. It means 1 gram of ice has to absorb 336 joule of heat energy from atmosphere during melting to water. That's why the atmosphere becomes pleasant just after hailstorm. क्योंकि इतने सारे आइस तो गिरता हुआ रहेगा, वो 1 ग्राम 336 ऑब्जर्व करेगा एटमॉस्फेयर से. अरे ये बहुत ज्यादा आइस, तो इतना मास आइस वो 336 ऐसे ऑब्जर्व अगर कर लेंगे एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर थोड़ा सुहाना हो जाएगा इसका माने कंडीशन. ओके, then और एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, when ice in a frozen lake starts melting, surrounding becomes cold. ये तो जोर में होता है. दिस इज ड्यू टू हाई स्पेसिफिक लैटेंटिटी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. तब जब आइस मेल्ट होने लगता है तब क्या होता है, सराउंडिंग बिकम्स कोल्ड. वो माने स्पेसिफिक लैटेंटिटी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज हाई, दैट इज 336 जूल पर ग्राम. इट मींस 1 ग्राम ऑफ आइस absorb 336 joule of heat energy from the atmosphere during melting. So when ice in a frozen lake starts melting, surrounding becomes cold or pleasant. इसके बाद थोड़ा बहुत रहा, कोई अगर कहा when you put 10 gram of ice or 10 gram of water, or simply you put ice or water in your tongue, on your tongue. एक साइड में आइस रखा, दूसरे साइड में वाटर रखा 0 डिग्री में. आइस एट 0, वाटर एट 0. Which will give you better sensation of coldness? कौन ज्यादा तुम्हें ठंडा ज्यादा देता है? आइस नेचुरली ज्यादा ठंडा देता है. क्यों? हम कहेंगे दिस इज ड्यू टू स्पेसिफिक लैटेंटिटी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. इट मीन्स माने 1 ग्राम ऑफ आइस है माने एब्जॉर्ब 336 जूल ऑफ एक्स्ट्रा हीट एनर्जी at 0 degree Celsius, then 1 gram of water at 0 degree Celsius temperature. मतलब टॉन्ग का दोनों साइड में मैंने 1 ग्राम वाटर रखा एक साइड में, 1 ग्राम आइस रखा. मैंने देखा आइस साइड में मेरा टॉन्ग ज्यादा ठंडा लगता देन वाटर. क्यों? बिकॉज आइस हैज हाई स्पेसिफिक लैटेंटिटी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज हाई. इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ आइस absorb 336 joule of extra heat energy at 0 degree Celsius temperature. Then 1 gram of water at 0 degree Celsius temperature. क्योंकि उससे जाना है 336 ऐसे हीट लेके वो 0 डिग्री में वाटर को चेंज होता है. ओके, सो टुडे आई इन माय नॉलेज माने नोइंगली आई ऑल पोर्शन, जितना एग्जाम ओरिएंटेड जितना थ्योरी पोर्शन, I try to cover all portion of theory, and it will take one more class for the completion of numericals. Okay, wishing you all the best. I remain. Thank you. Yeah.